Hello students, welcome to today's session. Today we are going to discuss photochemistry, Unit 5, Miscellaneous Photochemical Reactions. Today's topic is Singlet Molecular Oxygen Reaction. This module is meant for MSc Chemistry final year 3rd semester students. Paper 2 Photochemistry, paper code is MCH502 and today's topic is Singlet Molecular Oxygen Reaction. Myself is Juzar Ali Rangwala. I am working as Assistant Professor of Chemistry subject in Government Arts and Commerce College, Kannur, Devas. Now this slide displays brief description of topic which we are going to study today. Okay, before moving towards this module or reading this module, there are some basic prerequisites. You should have knowledge about certain chemical terms before reading this module. First of all, you should have knowledge of bonding and electronic configuration in oxygen molecule as per molecular orbital theory. Also, you should have knowledge about what are singlet and triplet excited states in photochemistry. And you must have a brief idea about what are photosensitized reactions. आपको इस मॉड्यूल को समझने से पहले या देखने से पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ज्ञान होना चाहिए। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन की कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस रूप से भरे हो जाते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एकक और त्रियक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए और फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, फोटोसेंसिटाइज्ड प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। इन सभी से संबंधित कुछ चर्चा हम इस मॉड्यूल के दौरान करेंगे। We will discuss all of these headings briefly during the course of our module. Now, what are the objectives of this module? After studying this module, students should be able to define what is singlet molecular oxygen reaction. Okay? Or you can say you should be able to define what is type 2 photooxygenation reaction. You should be able to explain the mechanism of singlet molecular oxygen reaction, and you will be in the position of predicting products in such reactions. Also, after completing this module, you should be able to tell the role of singlet oxygen in biological systems and its recent applications in medical field. इस मॉड्यूल को देखने के पश्चात आपको यह समझ में आएगा कि सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन क्या है, इनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है और बायोलॉजी के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है। Now this slide over here, it displays bonding in oxygen molecule. इस स्लाइड के माध्यम से आपको ऑक्सीजन के अणु में आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया गया है। As all of us know, oxygen has 6 electrons in its outermost shell. So two oxygen atoms, when they bind together by the means of two covalent bonds, will have total of 12 electrons in their outermost shell. प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जब ऑक्सीजन का अणु निर्मित होता है तो कुल 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षक में उपस्थित होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब एमओ थ्योरी के अनुसार लिखते हैं तो अव्वव के नियम का पालन करते हुए जिन कक्षकों की ऊर्जा सबसे मिनिमम होती है या न्यूनतम होती है उन्हें पहले भरा जाता है और बाकी की कक्षक उसके पश्चात ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरी जाती है।
While filling the electrons in molecular orbital diagram, we have to follow the basic principle of Aufbau rule, which states that electrons will first occupy the orbitals of least energy, and then the filling of electrons will proceed from lowest energy molecular orbital towards highest energy molecular orbital. अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py कक्षक है, इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. As you can see in this MO diagram, there are two unpaired electrons in two different pi anti-bonding orbitals, that is pi star 2px and pi star 2py. So, molecular orbital theory states that oxygen is paramagnetic in nature. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय होती है, क्योंकि इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. Now let us see what is singlet oxygen. सिंगलेट ऑक्सीजन क्या है या एकक ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन in its ground state is in triplet state, designated by the term symbol 3 summation negative g. Now, what is this triplet state? As we have seen in our previous slide, each oxygen molecule has two unpaired electrons. So the total spin of these two unpaired electrons is equals to 2 into half, that is 1. And if we apply the formula of spin multiplicity, that is 2s plus 1, then we will have 3. If we put capital S is equals to 1, then our spin multiplicity is equals to 3. So this ground state of oxygen is triplet state. Okay. Kautsky discovered the reactivity of singlet oxygen in 1930. 1930 या 1930 के वर्ष में कॉट्स्की नामक वैज्ञानिक ने सिंगलेट ऑक्सीजन की खोज की थी. When molecular O2 gets activated by a thermal or photochemical agent, it changes into singlet oxygen, which is designated by two different term symbols, as you can see on the screen. जब आपकी आणविक ऑक्सीजन जो कि त्रियक अवस्था में है, ट्रिपलेट स्टेट में है, इस पर ऊष्मा या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यहाँ सिंगलेट ऑक्सीजन यानी कि एकक ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है. इस सिंगलेट ऑक्सीजन से दो अलग अलग टर्म सिंबल्स जुड़ी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. द हायर एनर्जी टर्म सिंबल rapidly converts into the lower energy more stable singlet state. जो दो सिंगलेट टर्म सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 1 del G सिंगलेट स्टेट अधिक स्थायी होती है, और जो उच्च ऊर्जा वाली अस्थायी सिंगलेट अवस्था है वो तुरंत निम्न अवस्था वाली स्थायी सिंगलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है. The higher energy singlet state rapidly converts into lower energy stable singlet state, which is designated by 1 del G. तो जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम आगे चलकर देखेंगे वह 1 del G सिंगलेट अवस्था द्वारा की जाएगी. अगली स्लाइड को ध्यान से देखिए. इस स्लाइड में आपको तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम दिखाई दे रहे हैं. इसमें से जो लेफ्ट की तरफ एमओ डायग्राम है वो नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए है, जो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं. इसके बाद जो सेंटर और राइट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये सिंगलेट अवस्था सिंगलेट स्टेट को दर्शाते हैं. आपका फोकस केवल पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पर होना चाहिए. आप देख सकते हैं जब त्रियक अवस्था थी, ट्रिपलेट अवस्था थी, दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित था.
लेकिन जैसे ही ये सिंगलेट अवस्था में परिवर्तित होती है, सबसे पहले जो पैरेलल स्पिन की दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थी, उनका अलाइनमेंट चेंज होकर एंटी पैरेलल हो जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो पाई स्टार वाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थी, उसकी फ्लिपिंग हो गई और इस फ्लिपिंग के फलस्वरूप जो पैरेलल स्पिन वाली दो इलेक्ट्रॉन्स थी, अब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये जो सिंगलेट अवस्था है जिस पर अभी मैं आपको एरो दर्शा रहा हूं, ये उच्च ऊर्जा वाली सिंगलेट अवस्था है। दिस इज द सिंगलेट स्टेट ऑफ हायर एनर्जी एंड इट इज लेस स्टेबल इन नेचर. So what happens? It rapidly changes into lower energy singlet state, that is 1 del G. ये उच्च ऊर्जा वाली सिंगलेट अवस्था तुरंत जो है निम्न ऊर्जा वाली सिंगलेट अवस्था 1 del G में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? जो दो एंटी पैरेलल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें युग्मन हो जाएगा। The two anti parallel unpaired electron will pair with each other, and as Pauli's exclusion principle state, when two electrons pair inside same orbital, they must have opposite spin. ओके, जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन किसी एक कक्षक में होता है, तो उस दशा में उसकी जो चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब 1 del G सिंगलेट अवस्था आती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के किसी एक कक्षक में युग्मित हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी ट्रिपलेट अवस्था है वो अब सिंगलेट अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। ओके, नाउ फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। व्हाट इज फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन? Photooxygenation is a light-induced oxidation reaction in which oxygen gets incorporated in products. प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऑक्सीजन का अणु पूर्ण रूप से आपके अभिकारक में जुड़ जाता है, इसे फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कहते हैं, प्रकाश ऑक्सीकरण अभिक्रिया। When photooxygenation occurs via singlet molecular oxygen reaction, then it is known as type 2 photooxygenation reaction. जब फोटोऑक्सीजनेशन अभिक्रिया सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के माध्यम से होती है, तब इसे द्वितीय प्रकार का फोटोऑक्सीजनेशन कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। When photooxygenation occurs via singlet molecular oxygenation reaction, then it is known as type 2 photooxygenation. Okay, now the singlet oxygen could be generated by excited of normal triplet oxygen in a microwave radiation or by the use of visible radiation and a chemical known as photochemical sensitizer. ओके, आपके पास सिंगलेट ऑक्सीजन को उत्पन्न करने के लिए दो माध्यम है। या तो आप इसे माइक्रोवेव रेडिएशन की उपस्थिति में उत्पन्न करवाएं जिससे कि ट्रिपल स्टेट एक्साइटेड होकर सिंगलेट स्टेट में परिवर्तित हो जाए, या फिर आप 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में विजिबल रेडिएशन की सहायता से सिंगलेट ऑक्सीजन उत्पन्न करें। जब आप विजिबल रेडिएशन का उपयोग करते हैं या सामान्य प्रकाश का उपयोग करते हैं, तब आपको एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर कहते हैं। ठीक है, ये फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर कई प्रकार के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल में हमारे पास उदाहरण है डाइमिथिलिन ब्लू। मैथिलिन ब्लू नाम का रंजक फोटो केमिकल सेंसिटाइजर की भांति कार्य करता है। एक और रंजक है, एक और सिंथेटिक डाई है रोज बंगाल। रोज बंगाल डाई का उपयोग फोरेंसिक साइंस में काफी किया जाता है। इसके अलावा नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर्स के उदाहरण है क्लोरोफिल,
और विटामिन राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नामक विटामिन और क्लोरोफिल जो है ये प्राकृतिक नेचुरल फोटोसेंसिटाइजर के उदाहरण हैं। Now let us discuss some examples of photooxygenation reaction via singlet oxygen. Okay, let us see what is the photooxidation of alkenes and polyenes by singlet oxygen reaction. सिंगलेट ऑक्सीजन के माध्यम से एल्कीन्स या फिर पॉलीइन्स किस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं, इनके कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। एल्कीन्स, डाइन्स एंड पॉलीइन्स आर अटैक्ड बाय सिंगलेट ऑक्सीजन। एसाइक्लिक और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स गिव्स 1,4 cycloaddition reaction to form 6-membered cyclic products, that is cyclic peroxides. Now what does this mean? जो एल्कीन्स या डाइन यौगिक होते हैं यह प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटो ऑक्सीकृत होकर 1,4 साइक्लोएडिशन अभिक्रिया द्वारा, नोट कर लीजिए, 1,4 साइक्लोएडिशन अभिक्रिया द्वारा एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाते हैं जिन्हें साइक्लिक पर ऑक्साइड कहा जाता है। नीचे के भाग में आप इसके 3 उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है 2-methyl 1,3 butadiene. First example is 2,3 I beg your pardon. First example is 2-methyl 1,3 butadiene. This compound, when it comes in contact of light and oxygen in the presence of photosensitizer, it changes into a cyclic peroxide. Okay, जब यह पदार्थ 2-methyl 1,3-butadiene यहाँ हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण किसमें होता है? पेरोक्साइड में होता है। A similar kind of reaction is observed in case of cyclohexadiene. Second example is 1,3 cyclohexadiene. When cyclohexadiene comes in contact of oxygen in the presence of light and a photosensitizer material, it forms a cyclic endoperoxide. जब cyclohexadiene ऑक्सीजन और लाइट के संपर्क में आती है तो फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में यह साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड का निर्माण करती है। ओके, the mechanism of these reactions. Singlet molecular oxygen reaction, which is also known as type 2 photooxygenation reaction, occurs via photosensitized oxygen transfer mechanism. You should note this point that singlet molecular oxygen reaction occurs via photosensitized oxygen transfer mechanism. This mechanism involves the direct combination of substrate with oxygen. Okay, इस mechanism के अनुसार सीधे सीधे तौर पर जो भी आपका रासायनिक अभिकारक है वह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? प्रत्यक्ष तौर पर अभिक्रिया करता है। There are 2 theories regarding this mechanism. इस थ्योरी से संबंधित 2 मैकेनिज्म प्रपोज की गई है, 2 अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म प्रपोज की गई है। First theory has been proposed by a chemist called Schenck. Schenck नामक रसायनज्ञ द्वारा पहली थ्योरी प्रपोज की गई, पहली थ्योरी प्रतिपादित की गई। इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्रिपलेट सेंसिटाइजर के संपर्क में आता है और यहाँ ट्रिपलेट सेंसिटाइजर ट्रिपलेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक योगात्मक उत्पाद बनाता है। इसके पर जो आपका योगात्मक उत्पाद है, जो पर ऑक्साइड सेंसिटाइजर है, वो सबस्ट्रेट से टकराकर या अभिक्रिया करके हमें ऑक्सीकृत प्रोडक्ट देता है।
इस मैकेनिज्म को कुछ स्टेप्स के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका फोटो सेंसिटाइजर प्रकाश के संपर्क में आता है और ये ट्रिपलेट सेंसिटाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ट्रिपलेट सेंसिटाइजर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ये पर ऑक्साइड सेंसिटाइजर रेडिकल का निर्माण करता है। फिर ये पर ऑक्साइड सेंसिटाइजर रेडिकल सबस्ट्रेट अर्थात अभिकारक के ऊपर आक्रमण करती है और हमें ऑक्सीजनेटेड उत्पाद मिलता है या ऑक्सीजनेटेड क्रियाफल प्राप्त होता है। और इस पूरी अभिक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि जो आपका फोटो सेंसिटाइज्ड मटेरियल है वो पुनः रीजनरेट हो जाएगा। मतलब it is just acting like a catalyst which accelerates the rate of chemical reaction without itself undergoing any chemical change. Okay, so according to Schenck, first of all, the photosensitizer, when it comes in contact of light, it gets converted into triplet photosensitizer, which then collides with oxygen to form a peroxide radical, and then this peroxide radical, it combines with substrate to form a photooxygenated product. Okay, now second theory has been proposed by a scientist called Foote. Foote favors the idea of singlet oxygen being the sole agent in electron transfer step. फुटे के अनुसार जो आपकी सिंगलेट ऑक्सीजन है केवल वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का माध्यम होती है। यह मैकेनिज्म शेंक मैकेनिज्म की तुलना में काफी अलग है। इस मैकेनिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, first of all, photosensitizer comes in contact of light. Then it passes the energy of light towards triplet oxygen. Triplet oxygen, on gaining the energy from triplet photosensitized material, changes into singlet oxygen, and then this singlet oxygen directly attacks substrate molecule to form a photooxygenated product. Okay, तो जैसा कि फुटे के द्वारा बताए गए क्रियाविधि में दिख रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहले ट्रिपलेट ऑक्सीजन ट्रिपलेट सेंसिटाइजर के संपर्क में आकर उससे एनर्जी ग्रहण करती है और यह सिंगलेट ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है और फिर यह सिंगलेट ऑक्सीजन सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर फोटो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट बनाती है। Now the formation of hydroperoxides in photosensitized oxygen transfer reactions that follow the Schenck type of mechanism occurs only when hydrogen is present on allylic carbon. Okay, so what is the prerequisite for the substrate to follow Schenck type of mechanism? It must have a hydrogen present on allylic carbon. Oxygen always becomes attached to one of the doubly bonded carbon atom, which then shifts into allylic position. The oxidation with singlet oxygen occurs via concerted mechanism, just like Ene reaction. Okay, you must have studied Ene reaction in pericyclic chemistry. So oxidation with singlet oxygen occurs via single step mechanism और कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओके, चलिए इन स्टेप्स को हम एक प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा समझते हैं जिससे कि आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं। सबसे पहले उदाहरण की ओर देखिए, आप वहां पर एक एलाइलिक सिस्टम देख सकते हैं। As all of us know, what is allylic carbon? Allylic carbon is a sp3 hybrid carbon which is attached to sp2 hybrid carbon of alkene. Okay? एल्कीन की एलाइलिक कार्बन पर जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन उपस्थित है
यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फोटोसेंसिटाइजर एंड इट विल फॉर्म अ हाइड्रो पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। इसके द्वारा एक हाइड्रो पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। Then this hydroperoxide free radical, it is reduced in the presence of a reducing agent to give an enol derivative. Okay. Let us see example of cyclooctaene. आप cyclooctaene के उदाहरण से देख सकते हैं कि जब यह लाइट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पर उत्प्रेरक की भांति कार्य करके एक हाइड्रो पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है। As you can see in the case of cyclooctaene, when it comes in contact of light and oxygen in the presence of photosensitizer material, it forms a cyclic hydroperoxide intermediate. And as you can see in this reaction, the position of double bond has changed. Double bond की position परिवर्तित हो गई। When this hydroperoxide intermediate is reduced by sodium sulfite, it forms an enol derivative. Okay, so we get enol derivative in this reaction. Now moving towards next example. Okay, in next example also you can see that oxygen can attack on allylic hydrogen at two different positions. Okay, in first condition it will withdraw allylic hydrogen from that allylic position which is present on substituted alkene. Substituted alkene पर उपस्थित मैथिल समूह में पाई जाने वाली एलाइलिक हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी और आपको यहाँ पर एक इनोल डेरिवेटिव प्राप्त होगा। इसी अभिकारक में एक दूसरी संभावना और बनती है, जब आपका एलाइलिक हाइड्रोजन मेथिलीन ग्रुप पर उपस्थित हो। ओके, when your allylic hydrogen is present on a methylene group, then in this condition also you will have an enol derivative, but as you can see the position of double bond as well as OH is different in both the compounds. दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में डबल बॉन्ड और पोजीशन की अंतर, डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन में काफी अंतर है। So these are examples of photochemical reactions which are proceeding via singlet oxygen reaction, and they are following Schenck type of mechanism in which a hydrogen atom must be present on allylic carbon atom. Okay. Now there are few more examples of these photosensitized reactions. First example, as you can see, again it is a cyclohexadiene, but in this condition there are two different substituents present on first and fourth carbon atom. On first carbon atom we have methyl group, on fourth carbon atom we have isopropyl group. Okay, so this disubstituted cyclohexadiene, when it comes in contact of light and oxygen in the presence of photosensitizer, it will form a cyclic endoperoxide. Something similar will happen in case of furan. फ्यूरैन में भी फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन संभव है और यहाँ पर भी हमें साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों अभिक्रियाओं में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी जैसा कि इन रिएक्शन में होता है। ओके, now next example is from the chemistry of natural products. This is photo-oxygenation of limonene. Limonene नाम के photo-oxygenation को यहाँ पर दर्शाया गया है। Limonene is a natural product. It is an essential oil which is derived from the leaves and rinds of citrus plants. जो सिट्रस प्लांट की पत्तियां और उनके फलों के छिलके होते हैं उनमें एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है लाइमोनीन।
लाइमोनिन को अगर काफी समय तक हवा और लाइट की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे यह लाइमोनिन डिग्रेड हो जाता है। इसका कारण है फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन का अटैक होगा, हाइड्रोपरऑक्साइड डेरिवेटिव इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट का आप चयन करने पर आपको इनॉल प्राप्त होगी। ओके, सो दिस इज फोटो ऑक्सीजनेशन ऑफ लाइमोनिन। नाउ some substituted alkenes behave differently with singlet oxygen. First, they form a dioxetane in a cycloaddition reaction. Then these dioxetanes, if they are unstable in nature, they will undergo decomposition reaction to form a 2-carbonyl derivative. Okay, a dicarbonyl derivative. What will happen? Look at the first example over here, in which you can see a cyclopentene ring is attached with a benzene ring. Okay, so it is a bicyclic system in which the two rings are present. One is benzene and another is cyclopentene. So when it comes in contact of light and oxygen and photosensitizer as well, it undergoes 2+2 cycloaddition reaction. Okay, after 2+2 cycloaddition, it forms a cyclic peroxide, and this cyclic peroxide is known as a dioxetane. Dioxetane is a heterocyclic compound in which oxygen atoms are present in heterocyclic ring. जैसा कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के पश्चात जो साइक्लोपेंटीन का डबल बॉन्ड है, यहाँ 2+2 साइक्लो एडिशन के द्वारा सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है और हमें डाइऑक्सीटान नामक यौगिक प्राप्त होता है। यह डाइऑक्सीटान अस्थायी है। दिस डाइऑक्सीटान इज अनस्टेबल एंड इट विल डिकम्पोज इनटू अ डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इस डाइऑक्सीटेन का विघटन एक ऐसे यौगिक में होगा जिसमें 2 कार्बोनिल समूह उपस्थित होंगे। ओके, now in case of electron rich alkenes, you will have a dioxetane derivative which is stable in nature, and this reaction is highly stereospecific in nature. Okay, what is stereospecific reaction? A reaction in which one stereoisomer forms another particular stereoisomer. Okay, जैसा कि आप यहाँ नीचे दर्शा गए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक एल्कीन है जिसके दोनों टर्मिनल्स पर एक एक इथॉक्सी समूह उपस्थित है। वी आर हैविंग 2 इथॉक्सी ग्रुप एट 2 डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ एन एल्कीन। एल्कोक्सी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। इट एग्जिबिट्स प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू विच इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इन नेचर एंड इट विल मेक डबल बॉन्ड रिच विथ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस आई प्रभाव के चलते यह इथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण करेगा, जिसके फलस्वरूप डबल बॉन्ड जो है इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा। तो इस दशा में अगर आपके पास सिस आइसोमर है, इफ यू आर हैविंग सिस डाई इथॉक्सी डेरिवेटिव, देन यू विल हैव सिस डाई इथॉक्सी डाइऑक्सीटान। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे बनने वाली डाइऑक्सीटान में दोनों इथॉक्सी समूह एक ही प्लेन में उपस्थित है। मतलब यहाँ पर जो सिस आइसोमर है वो हमें केवल सिस देगा और जो ट्रांस डाई इथॉक्सी एल्कीन है वो हमें ट्रांस डाइऑक्सीटान देगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में आप देख सकते हैं कि जो सिस आइसोमर है वो केवल सिस उत्पाद देगा, सिस क्रियाफल देगा, और जो ट्रांस आइसोमर है वो केवल ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ट्रांस क्रियाफल देगा। इसलिए यह रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। Now let us see the role of singlet oxygen in biological system. बायोलॉजिकल सिस्टम में सिंगलेट ऑक्सीजन का क्या रोल है? In biological system, 1-DEL-G singlet state is a potent biological toxin.
यहाँ एक विषैले पदार्थ की तरह कार्य कर सकती है। It oxidatively damages a variety of biological molecules like DNA. It inactivates viruses and kills both bacterial and mammalian cells. यहाँ बैक्टीरियल और मेमेरियन सेल्स को नष्ट कर देती है, डीएनए को ऑक्सीडाइज कर देती है और यहाँ वायरसेस को मारने में भी सक्षम होती है, क्योंकि सिंगलेट ऑक्सीजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का ऑक्सीकरण संभव है। Singlet oxygen is felt to be a common mediator of photochemical damage of both plants and animals. The presence of singlet oxygen in biological system has led to new theories on carcinogenesis. Carcinogenesis से संबंधित कई थ्योरीज में से एक थ्योरी सिंगलेट ऑक्सीजन को शरीर में कैंसर उत्पन्न होने की वजह मानती है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं जिससे कि शरीर में कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो सकता है। इनमें से एक मत यह भी है कि जब शरीर की कोशिकाओं में सिंगलेट ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो यह शरीर में कैंसर उत्पन्न करने का कारण हो सकती है। इसलिए शरीर में जीवित कोशिकाओं में सिंगलेट ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवों के लिए घातक भी साबित होती है। It is a potent biological toxin. As we have seen in our previous slide, plant pigments such as chlorophyll and vitamins like riboflavin acts as excellent singlet oxygen sensitizer. Chlorophyll और riboflavin जैसे पदार्थ सिंगलेट फोटोकेमिकल ऑक्सीजन सेंसिटाइजर की भांति कार्य कर सकते हैं। Now what are the harmful effects of this singlet oxygen? इसके दुष्प्रभाव क्या है? जैसा कि हमने देखा यह बायोलॉजिकल सिस्टम में टॉक्सिन की तरह काम करता है। Accumulation of higher concentration of singlet oxygen in chloroplast leads to damage of proteins and DNA, inhibiting protein synthesis in chloroplast, ultimately leading to photoinhibition of photosynthesis, resulting in cell death. इस बिंदु से आप क्या समझते हैं कि जब पौधे की कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, जहां पर की फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट में अगर सिंगलेट ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक हो तो इस कंडीशन में यह कई सारे प्रोटीन्स और डीएनए को नष्ट कर देती है। इसके फलस्वरूप आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रुक जाती है और उसके कारण पौधे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जिन स्थान पर तापमान अधिक होता है वहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर कई पौधे दिन के समय फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके पीछे सिंगलेट ऑक्सीजन का उपस्थित होना एक कारण हो सकता है। Photo-oxygenation of steroids sensitized by riboflavin could lead to brittleness of cell membrane and causes hemolysis, that is rupture or breakdown of red blood cell. हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित लिपिड्स को सिंगलेट ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर सकती है। अगर इन लिपिड्स या स्टेरॉइड्स का सिंगलेट ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण हो जाए तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नष्ट हो जाएगी और इसके कारण हमारे जो रेड ब्लड सेल, रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो नष्ट हो सकती है। इसलिए सिंगलेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनीमिया नामक रोग होने की भी संभावना होती है, जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। Singlet oxygen can induce DNA mutation by the oxidation of guanine nitrogenous base. Okay? DNA हमारे सेल में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें 4 प्रकार की नाइट्रोजनस बेस होती है: एडिनाइन, गुएनाइन,
साइटोसिन, थायामीन। ओके, इसमें से गुएनाइन नाइट्रोजनस बेस बेहद सेंसिटिव होती है। अगर सिंगलेट ऑक्सीजन द्वारा इस गुएनाइन नाइट्रोजनस बेस का ऑक्सीकरण कर दिया जाए, if it is oxidized via singlet oxygen reaction, then it converts into 8-oxo-G। गुएनिन के ऑक्सीकरण होने पर हमें 8-oxo-G नामक यौगिक प्राप्त होता है, जिससे कि डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन हो जाता है, और ये डीएनए म्यूटेशन किसी भी जीव के लिए घातक साबित हो सकता है। इस प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में अक्सर देखी जाती है। इसलिए कई बार अस्पतालों में बैक्टीरियाज को या वायरसेस को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट लाइट बैक्टीरिया या वायरस में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल को नष्ट कर देती है। ओके, इस प्रक्रिया को फोटो स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। Now this is the picture of what is called 8-oxo-G या 8-oxo-G का पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। अमीनो एसिड्स लाइक ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, मीथियोनिन, ओके, ऑल दीज अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टायरोसिन जो है हमारे शरीर में मेलानिन नाम के पिगमेंट का संश्लेषण करती है। हिस्टिडीन जो है ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन नामक प्रोटीन में पाई जाती है। सिस्टीन और मीथियोनिन या सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है। तो इन सभी अमीनो एसिड्स का ऑक्सीकरण अगर सिंगलेट ऑक्सीजन के द्वारा कर दिया जाए तो इसकी वजह से कई इंपॉर्टेंट प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ओके, तो जैसा कि हमने कई सारे एग्जांपल्स में देखा कि सिंगलेट ऑक्सीजन जैविक तंत्र के लिए काफी नुकसानदायक है, काफी घातक है। स्किन प्रॉब्लम्स लाइक फोटोसेंसिटिविटी और फोटोडर्मेटाइटिस इन ह्यूमंस एज वेल एज सेवरल हर्बीवोरस एनिमल्स आर कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन इन डर्मल टिश्यूज ऑन एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशंस और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। कई लोग जब तेज धूप में जाते हैं तो उनकी त्वचा पर रैशेस हो जाते हैं या उन्हें स्किन एलर्जी हो जाती है। इस रोग को फोटोडर्मेटाइटिस कहा जाता है और यह बीमारी केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि कई शाकाहारी पशुओं में भी देखी जाती है, जैसे गाय, भेड़, घोड़ा इत्यादि। इस कंडीशन में क्या होता है, तेज धूप की रोशनी में कई प्राणियों की त्वचा में सिंगलेट ऑक्सीजन बनती है और यह सिंगलेट ऑक्सीजन त्वचा में उपस्थित प्रोटीन, स्किन में उपस्थित प्रोटीन का ऑक्सीकरण कर देती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन या फिर सनबर्न होना संभव है। ओके, तो ये कई सारे दुष्प्रभाव हैं सिंगलेट ऑक्सीजन रिएक्शन के बायोलॉजिकल सिस्टम। Now let us discuss the beneficial application of singlet oxygen reaction. सिंगलेट ऑक्सीजन से हमें फायदा क्या है, इसका चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ उपयोग है, इसका मेडिकल फील्ड में हम बेनिफिशियल एप्लीकेशन देखते हैं। फोटोडायनामिक थेरेपी also known as PDT is an important application of singlet oxygen chemistry in the field of medical science, especially in the treatment of cancer. कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए एक थेरेपी की जाती है जिसे कहा जाता है फोटोडायनामिक थेरेपी। माफ कीजिएगा, यहाँ स्लाइड में एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर थ्योरी लिखा है, आप इसे थेरेपी पढ़िए। इस फोटोडायनामिक थेरेपी की सहायता से हम लोग सिंगलेट ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर में उपस्थित कैंसर की गठान को नष्ट कर सकते हैं, कैंसर के ट्यूमर को नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सिंगलेट ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैंसर नामक विकार को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होती है ना, एक फैक्टर हो सकती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत हम यहाँ देख रहे हैं कि उसी सिंगलेट ऑक्सीजन की सहायता से
आप कैंसर का उपचार भी कर सकते हैं। This therapy uses light energy in the form of laser beam to kill cancer cells. इस थेरेपी के माध्यम से आप प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कैंसर की सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? Treatment involves injecting a photosensitizer drug in the body of patient before surgery. When cells are exposed to light, it activates the drug and generates singlet oxygen inside the cancerous cell, which selectively triggers the destruction of cancerous cell by oxidation of DNA and essential proteins. ठीक है, आप जब किसी पेशेंट के शरीर में फोटोसेंसिटाइजर ड्रग का इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से इस ड्रग को कैंसरस सेल्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके पश्चात शरीर के उस भाग पर एक लेजर की बीम डाली जाती है। लेजर की बीम के संपर्क में आते ही फोटोसेंसिटाइज्ड ड्रग है वो एक्टिव हो जाती है और इसके द्वारा जो कैंसरस सेल्स हैं उनमें उपस्थित डीएनए को नष्ट कर दिया जाता है और धीरे धीरे कैंसर की यहाँ गठान खत्म हो जाती है, कैंसर का ये ट्यूमर नष्ट हो जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप फोटोडायनेमिक थेरेपी को समझ सकते हैं। पेशेंट है, उस पेशेंट के शरीर में जैसा कि आप देख सकते हैं सफेद रंग का एक कैंसर का ट्यूमर है। यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से उसे ड्रग दिया गया, ये ड्रग उसकी कैंसरस सेल्स में जाकर एक्यूमुलेट हो गया। इस शरीर के इस हिस्से पर लेजर की बीम डाली गई। लेजर की बीम डालने के पश्चात यहाँ पर सिंगलेट ऑक्सीजन उत्पन्न हुई और ये सिंगलेट ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ट्यूमर को नष्ट कर देगी। क्योंकि कैंसरस सेल्स में उपस्थित डीएनए नष्ट हो जाएगा तो कोशिकाओं का विभाजन भी रुक जाएगा, जिसके फलस्वरूप कैंसर खत्म हो जाएगा। ओके, कैंसर के अलावा फोटोडायनेमिक थेरेपी का उपयोग कई बीमारियों में किया गया है। एक बड़ी ही पीड़ादायक बीमारी होती है सोराइसिस। यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ी होती है। सोराइसिस में शरीर के ऊतक सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग। ओके, कई वायरल बीमारियां हैं जैसे कि हर्पिस या फिर एक हृदय संबंधी रोग होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। इन बीमारियों के लिए भी फोटोडायनेमिक थेरेपी का उपयोग किया गया है। आप इस विषय में और जानकारी हासिल करने के लिए इन किताबों की सहायता ले सकते हैं। These are few suggested books for further reading of this topic. अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सहायता से हमने आज जो पढ़ा है हम उसे रिवाइज करेंगे। Singlet molecular oxygen is designated by which term symbol? सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दर्शाने वाला टर्म सिंबल कौन सा है? 4 टर्म सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सही उत्तर है 1 डेल जी। 1 डेल जी जो है ये सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दर्शाता है। Which of the following is a natural singlet oxygen photosensitizer? प्राकृतिक रूप से कौन सा पदार्थ सिंगलेट ऑक्सीजन फोटोसेंसिटाइजर की भांति कार्य करेगा? 4 ऑप्शन है मैथिलिन ब्लू, राइबोफ्लेविन, रोज बेंगॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर है राइबोफ्लेविन। Conjugated or cyclic dienes combines with singlet oxygen to form cyclic peroxides via फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा था, साइक्लिक डाइन या कॉन्जुगेटेड डाइन सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर साइक्लिक पेरोक्साइड का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार के साइक्लो एडिशन का उदाहरण है? विच टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन? 1,4, 2+2, 4+2, 4+4। The correct answer is 1,4.
PDT फोटोडायनामिक थेरेपी का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? फोटोडायनामिक थेरेपी has been employed in the treatment of which disease? Cancer, psoriasis, atherosclerosis, all of the above. सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ यह मॉड्यूल समाप्त होता है। सभी दर्शकों का धन्यवाद।